गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को आवाज आ रही है? चैट बॉक्स पे जाइए और यस टाइप कीजिएगा। चैट बॉक्स। आपको एकदम क्लियर आवाज आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? तो चैट बॉक्स पे जाइए। यस, मैं नजर आ रहा हूँ। जोहो सीआरएम का वेलकम स्क्रीन नजर आ रहा है। चलो, ग्रेट। गुड टू सी एवरीवन इन द मॉर्निंग ऑन अ सैटरडे। आप लोगों को चैट बॉक्स मिल गया या नॉट येट? डिड यू रिसीव द चैट बॉक्स? एक मिनट, आई जस्ट चेक एंड कंफर्म बैक। Yes, you should be able to see the chat box. चलो, ठीक है। All right, friends. Let's start with the session. We are good to go. To begin with, a very warm welcome to all of you. Those who could make up in the morning on a Saturday. आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया for a Zoho CRM session on Saturday. Now we will start with this poll. What is good with you? आप लोगों के साथ कौन सी भाषा में बात करेंगे तो आपको सही लगेगा? यू हैव गॉट अ पोल. वी हैव गॉट 10 participants answering the poll. Which language is comfortable for you to attend the webinar? If it is English, mark English. If it is Hindi, mark Hindi. We have got 10 votes. ठीक है, चलो। तो द पॉपुलेशन एक्सपेक्ट्स मी टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. आई विल ट्राई एंड मेक इट इंग्लिश वाली कम्युनिकेशन रखूंगा. इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली. लेट्स स्टार्ट द सेशन. आज का सेशन का एजेंडा इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. वी विल बी हैविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट सीआरएम कैन डू फॉर अस, how is that we can make use of Zoho CRM for our business, and how is that we make the most for our clients through CRM. But before that, let me tell you how am I able to speak on it. So my name is Paritosh Pandya, and I've been a mutual fund distributor for past 6 years, 2018 and onwards. उसके पहले I worked for corporates like SDFC and ICICI and ICFAI. During my tenure with these corporates, I got to know that all the corporates which needs to be scaled up, all the corporates which needs to expand their business must have a system and process in place. If you happen to visit any of the McDonald's or any of the Burger King or any of those sessions, you would have experienced कि all these outlets have got their owner sitting somewhere. इसके बावजूद you are able to get the service which is the best. Do you know the reason why this happens? Let me know, why do you think people at McDonald's or Burger King or Pizza Hut offer the same kind of a service? If you know the answer, put me up in the chat box. Yes. So while these popular outlets offer good services without their owner sitting in the office, the owners are they are all MNCs. So while these offers, these services are offered across the globe similarly, the reason behind it is the process and the product. तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे है, सारे प्रोसेस एक जैसी है. You happen to visit McDonald's in Andhra Pradesh, you happen to visit McDonald's in Jammu Kashmir, you happen to visit McDonald's in
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र और गोवा, सब जगह these मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग्स विल हैव सिमिलर सर्विसेज। उनका लेआउट सेम होगा, उनके टेस्ट सेम रहेंगे, उनके एम्प्लॉय की केटरिंग सर्विसिंग अच्छी रहेगी, सेम रहेगी। आप में से शायद ही किसी को याद होगा कि उन्होंने कौन से वेटर या कौन से अटेंडेंट के थ्रू पिज्जा या बर्गर ऑर्डर किया था। हमें सिर्फ ये याद रहता है कि हमने पिज्जा हट या बर्गर किंग से लिया था। वी नेवर नो कि वो किसने बनाया, कितने में बनाया, कैसे बनाया, नथिंग, बिकॉज ऑल ऑफ दोज वेर ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। With that in place, दोस्तों, let me ask you one more question. Here it is on your screen. आप लोग कौन सा म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? Put me up in the chat box or on the poll screen. Great. Answers बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। The responses are Investwell, Red Vision, Fund Expert, IFA Now, MF Box, IFA Planet. या अगर आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एसोसिएटेड हो, पुट मी अप इन द चैट बॉक्स और ऑन द पोल स्क्रीन। Which mutual fund software are you using? So here are the answers. So basically we have got 11% attendees who attended the poll using Investwell, and 33% people are associated with national distributors. दोस्तों, ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स में 33% वेटेज है। आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे कि जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एसोसिएटेड है, आप अपनी ब्रांड क्लाइंट के सामने बना रहे हो या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की? आपका क्लाइंट आपको किस नाम से जानता है? आपके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या आपके थ्रू? वो आपको जानता है या एनजे को जानता है, वो प्रूडेंट जानता है, या कुछ और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे आप एसोसिएटेड हो उसे जानता है? पुट मी अप इन द कमेंट्स। मीनवाइल एक क्लैरिफिकेशंस दे देता। आज हम जिस सेशन, जिस सेमिनार, जिस वेबिनार के लिए इकट्ठा हुआ है, दिस इज अ सीआरएम सॉफ्टवेयर, एंड व्हेन आई से सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो आज अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आईएफए यूज कर रहा हूं और आईएफए नाउ यूज कर रहा हूं, अब मेरे को कुछ और चाहिए, फंड एक्सपर्ट यूज कर रहा हूं, कुछ और चाहिए, रेड विजन बराबर नहीं चल रहा, कुछ और चाहिए, तो दिस वेबिनार इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉर आवर म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर। म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर जितने भी मार्केट में है सो है। ठीक है? आज की सेशन इज नॉट मेंट टू गिव यू एनी अल्टरनेट्स ऑन दोज सॉफ्टवेयर्स। सो म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, दे ऑल एक्चुअली गिव अस द डेटा कि कौन से क्लाइंट्स है, किसकी एसआईपी चल रही है, किसका इंश्योरेंस ड्यू है, किसकी एसआईपी बाउंस हो गई, वगैरह वगैरह। वी कैन गेट ऑल दैट डेटा इन आवर म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर। बट सीआरएम क्या करता है? तो सीआरएम हमारे को देता है एक्शनेबल्स। ठीक है? तो डेटा तो हमको म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर दे देगा। लेट्स से हमारे पास कोई टीम मेंबर्स है जो हमें आके अभी बताएगा कि हमारा पर्टिकुलर क्लाइंट का ये एसआईपी बाउंस हो गया, या ये पर्टिकुलर क्लाइंट को एसआईपी अभी बढ़ानी थी। ये कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स होंगे तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? सो दैट इज वेयर सीआरएम कम्स इनटू द पिक्चर। बेसिकली सीआरएम की फुल फॉर्म बनती है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है? तो व्हाइल वी टॉक अबाउट क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, व्हाट डज इट हेल्प अस विद? इट हेल्प्स अस विद efficiently tracking of the clients and management of the information. हमारे को कभी भी क्लाइंट को दोबारा पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि क्या आपकी शादी हो गई है, do you have kids, because we already have that data in our CRM and all of that data is relevant for our business. ठीक है? a couple of times हमारे साथ कैसा होता है कि क्लाइंट ने हमको बताया था कि नेक्स्ट मंथ मेरा शादी है, तो आप 3 महीने बाद मेरे से बात करना, आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद एन एसआईपी फॉर माय स्पाउसेस नेम। अब 3 महीने बाद गूगल कैलेंडर में डालेंगे या टास्क में डालेंगे या कहीं और रिमाइंडर्स प्लेस कर देंगे, मोबाइल पर डाल देंगे, बट वी फॉरगेट द इवेंट और द इंसिडेंट। सो टू अवॉइड सच इंसिडेंसेस, अलग अलग जगह पर मैनेजमेंट रखना, ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी क्लमजी। और जब चाहिए तब याद नहीं आएगा, और जब याद आएगा तब हम किसी क्लाइंट के साथ बैठे हैं, कुछ काम कर रहे थे, कुछ अटके पड़े थे, एंड वी मेस्ड इट अप। मेस्ड अप से याद आया, yesterday I was actually sorting up with the nominee relationship for BSc thing. तो पिछले 2-4 दिनों से, मतलब लगभग 15 तारीख से काफी ट्रांजैक्शंस में कुछ मैस हो रहा था, तो नॉमिनी रिलेशनशिप वाज टू बी अपडेटेड अगेन। तो वो सब करने के चक्कर में काफी ट्रांजैक्शंस के क्लाइंट्स के ट्रांजैक्शंस इनवैलिड मार्क हुए,
बाउंस हो गए, वो सारा पैसा उनको गया नहीं गया, तो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी वो आइडियली इन्वेस्ट हुई या नहीं हुई। सो टू कंसिडर दैट वी हैव गॉट CRM इन प्लेस। आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा कि हाउ इज दैट आई एम मेकिंग यूज ऑफ द CRM एंड टेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सो बेसिकली मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, CRM से हमारे को एक्शनेबल मिलता है, दूसरा CRM से हमारे को अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। इट इज आइदर फॉर अस, जहां पर हमारे को टास्क, रिमाइंडर्स, ईमेल्स आएंगे, वेर इट विल एक्सप्लेन कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने की जरूरत है, एंड सो ऑन। एट द अदर एंड वो क्लाइंट को भी रिमाइंडर भेज देगा। लेट्स से हमारे किसी क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, मैंडेट ऑथेंटिकेशन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन पेंडिंग, तो उसकी रिमाइंडर्स भी क्लाइंट को वो ऑटोमेटेड भेजते जाएगा। तो ऑल ऑफ दैट आल्सो इज पॉसिबल थ्रू CRM। तो म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे ट्रांजैक्शन को ईज करेगा, मगर इट विल नॉट ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म और द ब्रांडिंग फॉर आवर बिजनेस। आप में से कितने लोग डीमार्ट को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज डीमार्ट? या हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज जियो स्मार्ट बाजार या जियो स्मार्ट बाजार वगैरह कुछ था रिलायंस का? इफ यू न्यू जियो स्मार्ट बाजार वगैरह, थम्स अप डालिए अपने इस पर, रिएक्शंस पे जाइए, और इफ यू न्यू व्हाट वाज जियो स्मार्ट बाजार या डीमार्ट, तो उधर जाके थम्स अप डालिए। ठीक है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस, वंडरफुल। तो दोस्तों हम सब जियो मार्ट जानते हैं, हम सब डीमार्ट जानते हैं, हम सब पहले शायद बिग बाजार भी जानते हैं, बट वो लोग तो वही सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो पहले से ही ब्रांडेड थे। वी ऑल वेंट टू दीज स्टोर्स once or couple of times for buying products which were already branded। एक बात का ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे कि we went to the mart to buy products which were already branded। तो branded products खरीदने के लिए we didn't go to our local kirana shops, we went to DMart or JioMart and bought those products, not just because they offered good discounts, also because it is also a brand। तो आज जब हम अपने कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, सम और दी अदर वे, हम ना वो एक फीलिंग क्लाइंट को नहीं देना चाहिए कि हम इंश्योरेंस के एजेंट है या म्यूचुअल फंड के एजेंट है और हम उनकी टीम से बात कर रहे हैं। अपना मकसद और अपना जो इंटेंट है वो तो ये है कि वी डू गुड फॉर द क्लाइंट्स, बट जब हम वो प्रोडक्ट प्रमोट करें, जब हम प्रोसेस को प्रमोट करें, तो उसमें फर्क पड़ता है। व्हेन यू एक्चुअली प्रमोट द प्रोसेस यू गेट टू नो कि ये एक और ब्रांड है। ठीक है, तो डीमार्ट तो खुद की कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं है, बट डीमार्ट इटसेल्फ इज अ ब्रांड। तो आप में से जितने भी लोग अगर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एसोसिएटेड हो, आप खुद सोचिएगा, यदि आप एनजे के प्रमोटर हो या प्रूडेंट के प्रमोटर हो, मैं भी एनजे या प्रूडेंट का प्रमोटर हूं, तो आप में और मुझ में क्या डिफरेंस है? क्लाइंट तो वही एनजे क्लाइंट ऐप यूज करेगा, वही प्रूडेंट ऐप फंड बाजार यूज करेगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? तो यहां मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, CRM will create that differential part with us। ठीक है, because that CRM will have products, CRM will have process in place। तो आपका क्लाइंट जिस प्रोसेस के थ्रू फंड बाजार तक पहुंचेगा और मेरे पास फंड बाजार के थ्रू पहुंचेगा विल बी डिफरेंट। तो दैट इज हाउ वी क्रिएट डिफरेंस इन प्रोसेसेस एंड नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अपने प्रोसेस, अपनी सर्विस ही हमारे बस की बात है। एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने जब वेबिनार सुनी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि प्रोडक्ट हमारे बस में नहीं है, मार्केट्स हमारे बस में नहीं है, रिटर्न्स हमारे बस में नहीं है। द ओनली थिंग इन आवर बस इज द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। द ओनली थिंग विच वी हैव कंट्रोल अपॉन इज द सर्विसेज वी ऑफर। आप में से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर गोल ओरिएंटेड बात कर रहे होंगे, कुछ रिस्क प्रोफाइलर से बात कर रहे होंगे, आप में से काफी लोग 100 करोड़ के ऊपर होंगे तो DDQ वगैरह की जो क्वेश्चनर्स होती है उस पर बात कर रहे होंगे, क्लाइंट इंटरेक्शन ट्रेस कर रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे। तो वो सारी चीजें करने के लिए वी नीड CRM, जिसमें एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है और उसमें अपना खुद का पर्सनल वैल्यू शो होता है। क्योंकि आज डीमार्ट की वैल्यू इसलिए है, लोग लाइन में खड़े रहकर बिल भरेंगे बिकॉज उसने अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर रखी है, नॉट बिकॉज इट इज डीमार्ट और इट इज जियोमार्ट। तो विद दिस दोस्तों, आर वी ऑल गुड टू गो? आप लोग अभी सॉर्टेड हो कि मैं CRM बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए हो? तो आप रिएक्शंस पे जाके एक थम्स अप डालिए so that I can take this forward। So with this introduction to Zoho CRM, Zoho एक कंपनी है, इंटरनेशनल इंडियन कंपनी है। ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। श्रीधर वेम्बू करके एक भाई साहब है, ये इसे मेजरली ओन कर रहे हैं। ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, तो किसी का इन्वेस्टर का पैसा लेकर के नहीं काम कर रहे हैं ये लोग। एंड इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट CRM।
ये सारी चीजें गूगल पर या जोहो सीआरएम के साइट पर अवेलेबल है। मैं जोहो का रजिस्टर्ड अफिलिएट हूं, बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू प्रमोट दिस। नाउ आई विल कम टू इट कि मैं अफिलिएट हूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे और आपको, बट कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, तो जोहो सीआरएम इज अ वर्ल्ड सीआरएम बेसिकली, बट बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब मैंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करा था एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 2018 में, आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स लाइक एचडीएफसी, आईसीसी एंड सो ऑन। And from the day one, I had a team member who should assist me and get my things forward. Also, I wanted a CRM in place who should let my team member assisted, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट विजिट्स, अपने क्लाइंट रिलेशनशिप्स पर इंपॉर्टेंस देनी है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रखना है, तो आई मस्ट हैव अ CRM. तो while I wanted a CRM in place, I was looking for good CRMs in the market. म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर उस टाइम पर आई स्टार्टेड ऑफ विद डेटा कॉम्प चल रहा था, वेल्थ मैजिक वाज समथिंग व्हिच आई फाउंड बेस्ट, which was something I could afford, and then वहां से शुरू हुई जर्नी। Then CRM चाहिए था तो I wondered with Salesforce, I worked around with Wealthbox, I also thought of Bittrex, then एक और CRM था उस वक्त, I don't remember the name now, but काफी सारे CRMs मैंने एक्सप्लोर करे, एंड देन जोहो को शॉर्टलिस्ट करा फॉर द रीजन कि वो टाइम पर इंडिया में डेटा सर्वर होना चाहिए वगैरह का मेरा सजेशन और एक्सपेक्टेशंस था। एंड जोहो मेरे बजट में बैठ गया, जोहो मेरे को समझ में भी आ गया, एंड जोहो वाले जो कहना चाहते थे वो भी मुझे समझ में आ गया, बिकॉज रेस्ट ऑफ द सीआरएम्स डोंट अंडरस्टैंड द वे वी टॉक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट सीआरएम अंडरस्टैंड्स एंड व्हाट वी एक्सप्लेन। बट वाइल कमिंग टू दिस सीआरएम थिंग एंड द जोहो, तो जोहो एक तो बजट में अप्रूव्ड था कि सस्ता सुंदर टिकाऊ इंडिया बेस्ड था, और वो कहीं पर भी चीप नहीं लगता था, बिकॉज मुझे अपने क्लाइंट्स को सर्विस तो वर्ल्ड क्लास देनी है। सो शॉर्टलिस्ट करी थी जोहो सीआरएम पर। तो सीआरएम हमने यूज करना शुरू करा और उसको बिल्ड करना शुरू करा। इट टुक मी अराउंड 1.5 years टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड द सीआरएम द वे आई वांटेड। और फिर एंड ऑफ द डे साल 1.5 साल गया और फिर सीआरएम को जैसी बनानी चाहिए थी, जैसी बननी चाहिए थी वैसे बनाई, जिसके चलते टुडे आई एम एबल टू ऑटोमेट और आई एम एबल टू यूज एआई और कंप्लायंस को, जिसको हम कहते हैं ना डीडीक्यू वाली कंप्लायंस हो गई, या क्लाइंट कम्युनिकेशन ट्रैकिंग हो गया, रिस्क प्रोफाइलिंग हो गया, असेट एलोकेशन हो गया, फंड रिकमेंडेशन हो गया, ये सारी चीजें बहुत सॉर्टेड हो गई। आज अगर क्लाइंट का कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। मेरी किस क्लाइंट से किस वक्त क्या बात हुई थी, सीआरएम में अवेलेबल है। मेरे किसी टीम मेंबर ने किसी के साथ बात की थी फॉर सम प्रोडक्ट सम सर्विस, अवेलेबल है। किसी क्लाइंट का बैंक चेंज नॉमिनी अपडेट करना है, सीआरएम पर अवेलेबल है। तो आई डोंट नीड टू हंट फॉर डिटेल्स एंड डेटा कि हाँ कहीं गूगल ड्राइव पर है, कहीं वन ड्राइव पर है, किसी टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल स्पेस, बिकॉज ऑफ विच चीजें आसान होती है फॉर मी एज ए ओनर ऑफ द कंपनी, फॉर माई टीम टू ट्रैक। क्योंकि आज अगर कोई नया टीम मेंबर भी मेरे ऑफिस में ज्वाइन करेगा तो उसके लिए भी चीजें आसान, उसको पता है कहाँ जाना है और क्या मिलेगा। आई डोंट नीड टू आस्क और ट्रेन हर की एक काम करना, गूगल ड्राइव पे जाना, वहां पर एक कस्टमर के नाम का फोल्डर बनाना, एंड देन सेव द डॉक्यूमेंट्स देयर एंड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देयर एंड डिटेल्स देयर एंड ऑल ऑफ इट। इतना मैस नहीं करना है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड ऑन अ सिंगल पेज। अगर किसी कस्टमर की फोन आती है, व्हाट्सएप आता है, एंड ही आस्क कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, कहाँ खुदाई करेंगे हम। सो इट हैज टू बी ऑन अ सिंगल पेज। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े बहुत रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर अ पार्ट ऑफ इट जोहो सीआरएम। अगर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जानना चाहते हैं, ओनर लेवल पर जानना चाहते हैं कि हमारे कितने क्लाइंट्स की एसआईपीस कौन सी स्कीम में ज्यादा चल रही है, कौन से फंड में ज्यादा चल रही है। अभी ज्यादातर क्लाइंट्स पूछ रही है अडानी का स्टॉक्स मेरा फंड हाउस में है क्या, तो कौन से फंड में है, कौन सी स्कीम में है। वी नीड टू आंसर इट बिकॉज दैट इज व्हाट द क्लाइंट एक्सपेक्ट्स एंड वी आर हियर फॉर। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो वी नीड टू रिस्पॉन्ड। तो ये सारा डेटा हमारे को सीआरएम से निकालते आएगा, बिकॉज स्कीम नेम्स, फंड नेम्स, इंश्योरेंस एक्सपायरी एंड सो ऑन। अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ एट दिस एंड, आप मुझे बताइए हमारे में से कितने लोगों को पता है कि हमारे पास कितने एसआईपी के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और कितने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं, और कितने टर्म इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं, एंड कितने मोटर इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानते हो या इन चारों में से किसी के जवाब जानते हो तो थम्स अप दीजिए, ठीक है। इफ यू नो एनी ऑफ दीज आंसर्स, आपको पता है कि कितने क्लाइंट्स की एसआईपी चल रही है, कितने क्लाइंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, कितने क्लाइंट्स का टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, सो ऑन, तो आप थम्स अप दीजिए, ठीक है। आपको नहीं पता है तो थम्स डाउन दीजिए, पुट मी अप ऑन द
रिएक्शन बटन, थम्स अप। इफ यू नो आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं जिनकी हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है, आपको ये भी पता है कि कितने क्लाइंट्स की एसआईपी चल रही है। अभी जिनके किसी के थम्स अप्स आए थे उनसे एक पर्सनल सवाल, आप में से कितने कस्टमर्स को पता, आप में से कितने लोगों को पता है कि क्लाइंट का हेल्थ इंश्योरेंस तो चल रहा है मगर एसआईपी नहीं चल रही है? एसआईपी चल रही है मगर टर्म इंश्योरेंस नहीं चल रहा है। टर्म इंश्योरेंस है मगर वो 5 साल पहले 50 लाख का ही लिया हुआ है। वी ऑफन फॉरगेट दिस पार्ट। ये एक अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वी यूजुअली फॉरगेट दिस पार्ट कि हमारे कौन से कस्टमर के पास क्या प्रोडक्ट नहीं है मगर होना तो चाहिए था। और यूजुअली हमने अगर किसी एक दिन बैठ करके वो डेटा निकाल भी लिया एक्सेल से वगैरह, तो अब उनको कॉल करेगा कौन और कब? कॉल करते हुए फोन नहीं उठा गया तो कहानी खत्म। तो मैं बताता हूं दोस्तों इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैंने सीआरएम से कैसे निकाली। तो बेसिकली सीआरएम में सबसे पहले मैं जो करवाता हूं और आपको जो करवाना चाहिए आइडियली आई बिलीव इज, एक वेलकम मैसेज जाती है क्लाइंट को ईमेल और व्हाट्सएप पे। बाउंस हो गई एसआईपी तो एक ईमेल और व्हाट्सएप जाएगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का व्हाट्सएप और ईमेल जाएगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जाएगा, अपनी टीम की इंट्रोडक्शंस जाएगी, टीम के लिए एक्शनेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, गूगल रिव्यूज मांग पाएंगे एंड सो ऑन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम प्रोफेशनल एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट, अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये एक क्लाइंट है सुशील करके, ठीक है। इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करी थी लास्ट वीक, 25,000 रुपए की प्रीमियम भरी थी। अब जब आप 25,000 की पॉलिसी किसी को दे रहे हो, डोंट यू थिंक उन्होंने 2200-2100 रुपए की एसआईपी कर लेनी चाहिए? बट हम उनको पूछेंगे तो बोले हाँ ठीक है बताता हूं। अब सीआरएम में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मैंने इस क्लाइंट की सीआरएम में एसआईपी ऐड, सीआरएम में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऐड कर दिया और बताया कि इनका 25,000 का प्रीमियम है, इस सीआरएम ने अपने आप 2 दिन बाद कस्टमर को व्हाट्सएप भेज दिया, डियर मिस्टर सुशील, मैंने देखा आप सालाना 25,000 रुपए का प्रीमियम भर रहे हो, इसको मंथली कन्वर्ट कर दो, सेविंग अकाउंट से 93% ज्यादा कमाओ, और अगर आपको ये करना है तो 93 मेरे को आप रिप्लाई में भेजो। ऐसी अगर व्हाट्सएप अगर कस्टमर को जाती है, ऑटोमेटेड जाती है, डोंट यू थिंक हमारे क्लाइंट का अपसेल बढ़ जाएगा? इफ यू बिलीव इससे क्रॉससेल बढ़ सकता है, एक बार थम्स अप डालिएगा। While this is happening, ये एक अपसेल वाला व्हाट्सएप जाता है क्लाइंट को। जैसे ही किसी क्लाइंट की अगर एसआईपी चल रही है हमारे पास, म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज करें, मुझे जितना पता है दे कैन गिव अस अ डेटा कि कौन से कस्टमर की एसआईपी को 1 साल हो गया। बट उसके आगे क्या? सीआरएम में जब डेटा है मेरे पास तो वो क्लाइंट को 1 साल बाद अपने आप व्हाट्सएप भेज देगा कि सर आपकी एसआईपी को 1 साल हो चुका है, आप अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ा लो तो आपका रिटर्न 34% से बढ़ जाएगा। मैथमेटिकल डेटा है, हम सब एसआईपी कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, उसके बेसिस पर ये दिया है। बट जैसे ही किसी क्लाइंट की एसआईपी को अगर 1 साल हो गया, उन्होंने एसआईपी नहीं बढ़ाई है, तो एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप चली जाएगी जिसके चलते क्लाइंट को रिप्लाई करना होगा, कर लेगा। तो आई डोंट स्पेंड टाइम टू चेक कि किसकी एसआईपी को साल हुआ, फिर उसको फोन करके मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, फिर वो बताएगा हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, फिर वो जब बताने के मूड में हो तब मैं सुनने के मूड में या जोन में नहीं हूँ। Instead, this WhatsApp goes to the customer automatically on every SIP anniversary. हमारे काफी सारे म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर क्लाइंट को बर्थडेज एनिवर्सरीज तो भेजते हैं, बट वी फेल टू सेंड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इट एक्चुअली हेल्प्स क्लाइंट टू इंक्रीज द वेल्थ एज वेल एज इट हेल्प्स अस टू गेट मोर बिजनेस आउट ऑफ द सेम क्लाइंट। और हम सोचते हुए लगते रहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अगर हम इतना ही लेकर के चलेंगे तो हमारे पास इतना ही आएगा। We don't get more because we haven't asked for it. और हम नए क्लाइंट्स की तलाश में खर्चा करेंगे, घूमते रहेंगे, पूछते रहेंगे। वही क्लाइंट देने की ताकत रखता है, बट somehow we fail to ask. So यहाँ तक सब चीजें सॉर्टेड है, तो you would have understood कि CRM से हमारा पूरा पॉइंट टू पॉइंट ट्रैकिंग होगा, हमारा सेल्स आसानी से चलेगा, अपना ऑपरेशन आसानी से चलेगा, और आपको ये भी अंदाजा आ चुका होगा कि आप में से किसी को भी कस्टमर को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कस्टमर खुद ही अपने पास आके बोलेगा कि हाँ मेरे को तो ये करना है, हाँ मुझे ये करना था, अच्छा ये आप करते हो क्या, मुझे भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज हमने उसको वो ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन कर दिया। एक और दुर्घटना हुई थी मेरे साथ, मेरे क्लाइंट ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भेजी, मुझे फोन करके बताया परितोष भाई आप ये म्यूचुअल फंड वगैरह करते हो तो आपको इंश्योरेंस का भी कुछ पता होगा आई एज्यूम, तो मैंने आपको पॉलिसी को अभी भेजी है, मैंने पॉलिसी बाजार से खरीदा है, आप एक बार देख लो सब बराबर है।
मैंने बोला सर हम भी करते हैं वैसे पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह। अच्छा आप करते हो, सो सॉरी नेक्स्ट टाइम आपसे करा लेंगे। अब आप सोचिए कितना दुखदाई होगा हमारे लिए, हमारा खुद का कस्टमर जिसकी 20-50 हजार रुपए की एसआईपी चल रही है, पूरी फैमिली हमारे साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है, मगर वो हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस जैसा कोई प्रोडक्ट जो हम वैसे ऑफर कर ही रहे हैं, मगर वो जाके पॉलिसी बाजार से ले रहा है या किसी और एक्सटर्नल सोर्स से ले रहा है, जस्ट बिकॉज वी फेल्ड टू इन्फॉर्म। हमारे पास उस वक्त सुध-बुध नहीं थी, हमारी टीम के पास उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, हम तो जो बिजनेस आ रहा है उसको बटोरने में बिजी थे, तो वो हमारा अपसेल या क्रॉस सेल वाला अपॉर्चुनिटी चला गया। तो ये सारी चीजें जो है हमारा सीआरएम ऑटोमेट कर देता है कि ये भेज दिया व्हाट्सएप, फिर ये व्हाट्सएप भेज दिया, फिर ये ईमेल भेज दिया, जिसके चलते क्लाइंट खुद ब खुद अपने साथ एंगेज्ड रहता है, अपने साथ एसोसिएटेड रहता है, विदाउट वी स्पेंडिंग द टाइम एंड मनी फॉर इट। यूजुअली अपनी जिंदगी में ना बहुत सारा काम होता है, कोई ना कोई हमको अच्छा काम पे लगा करके रखता है, बिकॉज ऑफ दैट वी टेंड टू फॉरगेट कि हमारे पास क्लाइंट भी है जिनके लिए हमको काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के लिए अगर हमने सीआरएम को डिप्लॉय कर दिया, सीआरएम को काम पे लगा दिया, तो अपना जो रेगुलर टास्क है अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, आस्किंग फॉर मोर बिजनेस, वो सारा सीआरएम खुद ही कर लेगा। फिर कंप्लायंसेस भी सीआरएम खुद ही कर लेगा। ये सब अगर खुद करेगा तो एक ये एम्प्लॉय है हमारे लिए। तो आप देखिए दोस्तों 2400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका प्राइसिंग बनता है। एक एम्प्लॉय को आपने रखा हुआ है जिसको आप 2,500-3 हजार रुपए सैलरी दे रहे हो, और आपका पूरा अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का बिजनेस वो संभाल रहा है। डू यू थिंक दिस इज वर्थ? आपको लग रहा है कि आप अपने ऑफिस में, अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक 3,000 रुपए के मंथली कॉस्ट के ऊपर किसी एम्प्लॉय को रख सकते हो? तो थम्स अप डालिए, गिव मी अ थम्स अप इफ यू थिंक कि हाँ ये 3,000 रुपए अगर मैं जोहो सीआरएम के नाम पर दे दूं तो मेरा पैसा वसूल। पुट मी अप अ थम्स अप इफ यू बिलीव दिस इज पॉसिबल। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस टिल द टाइम आपको लग रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं भाई ये 3,000 रुपए भी वसूल नहीं है, मेरे को नहीं लगता सीआरएम कुछ कर पाएगा, ग्रेट। तो काफी सारे रिस्पॉन्सेस पॉजिटिवली आ रहे हैं, जानकर खुशी हुई मुझे ये। तो दोस्तों ये 2400 रुपए महीने के हिसाब से 28,800 प्लस जीएसटी का आपका जोहो सीआरएम का प्राइसिंग बनता है, करीब 33,000 ऑड का भाव बनेगा, 3,000 रुपए के आसपास। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक यूज करते हो, ठीक है, मैं जोहो का रजिस्टर्ड अफिलिएट हूं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक यूज करोगे तो आपको $100, ठीक है, माने लगभग 8,000 रुपए, अभी तो डॉलर का दाम बढ़ गया, $100 का वॉलेट क्रेडिट फ्री में मिलेगा। आई रिपीट, अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक यूज करते हो तो आपको $100 फ्री मिलेंगे टू सब्सक्राइब टू जोहो, जिसके मतलब ये होगा कि आपको पूरी जोहो सीआरएम में 28,800 में से 8,000 कट जाएंगे, 20-21 हजार प्लस जीएसटी के दाम में आपको जोहो सीआरएम मिल जाएगा। आर यू ऑल एक्साइटेड विद दिस? यहां तक आपको खुशी समझ में आ रही है? हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड? आप में से कितने लोग सीआरएम को यूज करना शुरू करोगे? How many of you would like to take this CRM journey? Thumbs up डालिएगा जरा, let me understand what's the room thinking about. Great, चलो तो आप सबको जो भी आज वेबिनार में एंड तक है उन लोगों को 3 चीजें दूंने वाला हूं। पहला, मैं दूंगा जोहो सीआरएम का अफिलिएट लिंक मेरा, ताकि आप सबको 8,000 रुपए का डिस्काउंट जोहो सीआरएम की तरफ से मिलेगा। 8,000 प्लस समथिंग है, जोहो का जो वादा है वो $100 का है, ठीक है। तो आप सबको वो 8,000 रुपए का वॉलेट क्रेडिट मिल जाएगा। उससे चाहो आप जोहो का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, बट 8,000 वॉलेट क्रेडिट्स जोहो की तरफ से आपको मेरे रेफरल लिंक को यूज करने के लिए मिल जाएगा। आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है, तो जरूरी नहीं कि आपको जैसे ही सब्सक्राइब करो आपको खरीदना ही है। आपको 30 डेज की फ्री ट्रायल मिलेगी, ताकि उन 30 डेज में आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको वाकई में खर्चा करना है और वो परचेस करना है या नहीं करना है, ठीक है। बट आप लोगों को मैं पहले दूंगा जोहो सीआरएम का एफिलिएट लिंक, जिसमें $100 का वॉलेट क्रेडिट मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को आज एंड ऑफ द सेशन तक दूंगा चैटबॉट का टूल। आपने अगर मेरे व्हाट्सएप के साथ इंटरेक्शन किया होगा तो देखा होगा वहां से चैटबॉट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अभी मेरी टीम ऑफिस में बैठी है तो 10 बजे से 6 बजे तक मेरी टीम रिस्पॉन्ड करती है। 10 बजे के पहले और 6 बजे के बाद ऑन संडेज एंड बैंक हॉलीडेज टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है, तो चैटबॉट रिस्पॉन्स करता है।
तो जो भी कुछ इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ होनी चाहिए वो मेरा चैटबॉट खुद ही कर लेता है व्हाट्सएप के थ्रू। नो इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। एसआईपी का अमाउंट भी पूछ लेगा, डेट भी पूछ लेगा, इंश्योरेंस चाहिए तो रिन्यूअल कब करना है वो पूछ लेगा, पॉलिसी कॉपी मांग लेगा। एवरीथिंग इज डन थ्रू चैटबॉट। वो चैटबॉट का टूल भी मैं आप लोगों को दूंगा बाय एंड ऑफ दिस सेशन। तीसरी एक चीज मैं ऑफ लेट यूज करना शुरू किया हूं, उसके बारे में मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। गुड टू गो, यहां तक हम सॉर्टेड है। हम अब जाएंगे सीधे अपने सीआरएम के लाइव डेमो पर। सीआरएम की स्क्रीन में आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है तो थम्स अप दीजिएगा, सो आई गेट टू नो कि आप लोगों को सीआरएम का मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है। गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट। नाउ दैट अब मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं या आपके रिएक्शंस नहीं देख पाऊंगा, तो बाय दैट टाइम आई एम जस्ट कमिंग ऑन माय स्क्रीन। तो दोस्तों अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा सीआरएम का स्क्रीन है। यहाँ पर अपना ये आ गया, ये सारे टास्क क्रिएट हो चुके हैं, इनका कुछ पेंडिंग ट्रांजैक्शन है, अभी तक कुछ इसका डिसीजन नहीं आया है, दिखा रहा है। ये इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं जो आते 5 दिनों में एक्सपायर होने वाली है, ताकि मेरी नजर उस पर रहे। यूसीसी एंड मैंडेट क्रिएटेड टुडे यहाँ पर है। वन टाइम ट्रांजैक्शन, रिडेम्पशन या परचेसेस अगर किए तो यहाँ पे दिखेगा। आज अगर कोई एसआईपी रजिस्टर हुई तो यहाँ दिख जाएगी। अब हम जाते हैं सीधे क्लाइंट व्यू पे। लेट मी गो टू अ क्लाइंट कॉल्ड पारितोष। अब हमारे पास एक क्लाइंट है पारितोष के नाम से, तो मैंने यहाँ पर फाइंड किया पारितोष। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे पारितोष का पूरा प्रोडक्ट होल्डिंग नजर आ रहा है। ऊपर पारितोष का ग्रुप नेम नजर आ रहा है, फैमिली हेड जो होगा, रिलेशनशिप विद ग्रुप हेड, अगर ये किसी क्लाइंट पार्टनर से आया था तो उसका नाम नजर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यूसीसी स्टेटस, मैंडेट स्टेटस, एड्रेस। इन्वेस्टवेल मैं यूज करता हूं, तो इन्वेस्टवेल का जो भी डेटा होगा, जैसे उसका परचेस वैल्यू, एयूएम, जो भी कुछ रिस्पॉन्सेस आएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा ये छोटा सा एक स्नैपशॉट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे दिखेगा कि कस्टमर ने मेरे से 4 व्हीलर खरीदी है, नहीं खरीदी, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, एसआईपी चल रही है, एसआईपी कब बुक हुई थी, मेडिक्लेम कब खरीदा था आखिरी में, 4 व्हीलर कब आखिरी हुई थी, कस्टमर की पैन कार्ड यहाँ पे मिल जाएगी, आधार कार्ड यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा मैंडेट्स यहाँ पे नजर आएंगे, यूसीसी जो बीएससी से मैं क्रिएट करता हूँ वो यहाँ पे नजर आते हैं। जितनी भी पॉलिसीज इस क्लाइंट की मेरे पास चल रही है वो यहीं पे मिल जाएगी, तो आई डोंट नीड टू हंट की इसकी पॉलिसी कहाँ है, कब है, एवरीथिंग इज इन सिंगल प्लेस। अगर इमेजिन करिए हमारे को क्लाइंट की फोन आ गई कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, या गाड़ी मेरी अभी एक्सीडेंट हो गई है, मेरे को पॉलिसी कॉपी भेजो, कितना मेस होगा अगर हम उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ढूंढने में अगर 5-10 मिनट लगाएंगे। तो सीआरएम में इट इज वेरी इजी। यहाँ पर मैंने नेम सर्च करा, पॉलिसी रजिस्टर, पॉलिसी रजिस्टर में यहाँ जो पॉलिसी चल रही है उनकी उस पर आ गया, और ये रहा मेरा पॉलिसी का डॉक्यूमेंट। सिंपल, इट इज दैट इजी। इसके अलावा ये कब एक्सपायर हो रही है, मार्च 2025 में एक्सपायर हो रही है, 24 में खरीदी, एकदम आसान। उस वक्त आईडीवी 2,21,000 रुपए की थी। आरसी कॉपी वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मैंने किसके थ्रू बेचा था, कितना प्रीमियम था, क्या एक्सपायरी था, गाड़ी का नंबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सिंगल स्क्रीन। फिर मैं वापस ये इधर क्लाइंट नेम पे क्लिक करूंगा, आई एम कमिंग बैक टू द क्लाइंट स्क्रीन। तो जो भी चीजें हमारे को क्लाइंट की चाहिए वो सिंगल स्क्रीन पे नजर आएगी। ये उनकी एसआईपीज दिख रही है, यहाँ लमसम्स दिख रहा है, और अगर कस्टमर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट या जीएसटी सर्टिफिकेट, आईटीआर, जो यूजुअल नहीं कलेक्ट करता हूं मैं बट कभी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस के दौरान मांगा था, तो वो हमने यहाँ पर बतौर अटैचमेंट्स ऐड करके रखा है। फिर यूसीसी की थोड़ी विस्तार में जानकारी यहाँ पर ऐड करके रखी हुई है, और कुछ नोट्स की कस्टमर से जब जब जो भी बात हो रही है तो वो मेरी टीम यहाँ पे डाल देगी, क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल इन द टाउन टू विजिट द ऑफिस, ये डाल दिया और इसे कर दिया सेव। जैसे ये सेव हो गया, ये आज की तारीख में ये नोट दर्ज हो गई। तो जो भी इस क्लाइंट से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होगी, चाहे टेलीफोनिक हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, वो यहाँ पर मेरी टीम डाल देगी, ताकि उसके बारे में जब भी कुछ जानना होगा तो यहाँ पे जाके पता लगा सकते हैं। प्लस इन क्लाइंट की जितनी भी बर्थडेज है या एनिवर्सरीज है, उस पर उनको ईमेल्स चले जाएंगे, वो भी सारे पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब इस क्लाइंट की जब एसआईपी बुक हुई थी तो उनको क्या ईमेल्स गए थे, ये देखिए, ये एक ईमेल है जो क्लाइंट को गया
जब उनकी एसआईपी बुक हुई थी। डियर पारितोष सर, योर वेल्थ क्रिएशन एसआईपी ऑफ, ये डमी है तो आप समझ सकते हो, एन अमाउंट ऑफ ₹999 विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर कोटक बैंक अकाउंट, काइंडली मेंटेन द एडिक्वेट बैलेंस। एसआईपी ड्यू के लिए मिल जाता है। फिर अगर कस्टमर की एसआईपी बाउंस हो गई तो ये ईमेल है, एक्शन रिक्वायर्ड, योर एसआईपी इज बाउंस्ड। काफी बार काफी वजह से बाउंस होती है, सिर्फ फंड्स इनसफिशिएंट नहीं होता, कभी नॉमिनी अपडेशन पेंडिंग था, कभी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इनवैलिड था, कुछ भी हो सकता है और कस्टमर की एसआईपी नहीं गई, या कस्टमर की तो डेबिट हो गई बट अपने पास नहीं पहुंची। और अंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्विंग एनी सच क्वेरीज, ये कम्युनिकेशन क्लाइंट को चली जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हो ये ब्रांडिंग, यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक ही ब्रांडिंग और एक ही टाइप का फॉन्ट और ईमेल यूज हो रहा है। डियर पारितोष सर, योर वेल्थ क्रिएशन एसआईपी ऑफ सो एंड सो फंड इज बाउंस्ड ड्यू टू फंड्स इनसफिशिएंट। इफ द अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, तो हमको बता देना ताकि हम उसके बारे में कुछ कर सके। एक और चीज मैंने यहाँ पर बताई है क्लाइंट को कि हम किसी भी तरीके का चार्जेस कट नहीं करते हैं, फंड हाउस या हम कोई चार्ज नहीं लेंगे अगर आपकी एसआईपी बाउंस होगी, बट अगर आपको कोई चार्ज लगा है तो वो बैंक के एंड से लगेगा फॉर ईसीएस रिटर्न। मैं नहीं चाहता हूं कि कस्टमर वापस मेरे पास आए कि उसके पास 5,000 की एसआईपी भरने को पैसा नहीं था और 500 रुपए ईसीएस रिटर्न चार्जेस हमने उसके काट दिए, बिकॉज क्लाइंट को बैंक वाले ये बताएंगे कि आपकी एसआईपी बाउंस हुई है तो आपका पैसा उन लोगों ने काटा होगा। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सच लिटिगेशंस, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक मेंशन करा, प्लीज आंसर द कॉल रिसीव्ड फ्रॉम, ये नंबर देख रहे हो लैंडलाइन वाला 02269718895। दोस्तों ये लैंडलाइन नंबर नहीं है, ये एक आईपी टेलीफोन नंबर है जो मेरी टीम के पास उनके मोबाइल के हैंडसेट पर लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरी जो भी टीम मेरे ऑफिस आती है वो उनके हैंडसेट के थ्रू कॉल करती है क्लाइंट को और उनको कॉल जाती है इस लैंडलाइन नंबर से। आज सेशन खत्म होने के पहले मैं आपको ये वाला टूल भी देते जाऊंगा सो दैट आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो और उनके लिए अलग अलग मोबाइल नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा टीम, जितना भी टीम मेंबर्स आपके ऑफिस में होगा वो सब सिंगल नंबर से आउटगोइंग भी कर पाएंगे और वहां पर इनकमिंग आएगी तो कोई भी टीम मेंबर उसे आंसर भी कर पाएगा। आप टीम को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो, कोई टीम मेंबर छुट्टी पे है तो उसको आप ऑफ भी रख सकते हो, टीम मेंबर खुद भी उसे ऑफ रख सकता है ताकि दूसरे टीम मेंबर को आंसर जाए। ये हेल्थ पॉलिसी का मैं आपको बता रहा था, अपसेल अपॉर्चुनिटी, यहाँ आपको मैं बताता हूँ। ये क्लाइंट के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है 6,148 रुपए की, ये उनका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, इफ यू सेव जस्ट ₹512, आपको साल भर में 6,640 रुपए मिल जाएंगे जो आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, मैंने कस्टमर को इधर ही अपसेल कर दिया या क्रॉस सेल कर दिया कि आप अपनी एसआईपी शुरू कर दो फॉर रिन्यूअल ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि अगले साल के लिए प्रीमियम के लिए आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ये एसआईपी बुकिंग का डेटा है। ये एक और टूल है दोस्तों, मैं सीआरएम से यूज करवाता हूँ। ये क्लाइंट है, इनको गया है योर रिटायर रिच एसआईपी ऑफ 2,500 रुपया विल बी डेबिटेड फ्रॉम सो एंड सो, और उसको मैंने बता दिया ये डेटा। योर एसआईपी ऑफ 2,500 अगर 12% से बढ़ता है तो आपको 10 साल बाद मिलेगा 5,80,000, 15 साल बाद मिलेगा 12,61,000 और 20 साल बाद मिलेगा आपको करीब 25 लाख रुपए। आप सोचिए दोस्तों, हमारा कस्टमर हमारे साथ इसीलिए ज्यादा टाइम तक एसआईपी नहीं रखता या बीच में बंद कर देगा बिकॉज उसके लिए वो एसआईपी जा रही है, उसके लिए दिमाग में हमने कहीं एंकर नहीं डाला है कि उसको मिलेगा क्या। मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, उसमें मैंने एक महानुभाव से सुना था कि आज एलआईसी या जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बेचने की कंपनीज है, एंडोमेंट प्लान्स है, उसमें भले ही रिटर्न कमा रहा हो, कस्टमर उसे ब्रेक करने की नहीं सोचता। द रीजन इज उसके दिमाग में वो फाइनल नंबर है कि उसको 20 साल बाद 15 लाख रुपए मिलेंगे, 25 लाख रुपए मिलेंगे, 30 लाख रुपए मिलेंगे, और जिसके लिए वो आज हर महीना अपना प्रीमियम पे कर रहा है। वो ये प्रीमियम नहीं देख रहा है कि 5,000 कर रहा है, 15,000 कर रहा है, वो ये देखता है कि वो 20 लाख 25 लाख रुपए एंड ऑफ सो मेनी ईयर्स मिलने वाले हैं। हम हमारे कस्टमर को अगर एंड फिगर पर हुक करके रखेंगे तो अपने पास वो एसआईपीज को बंद नहीं करेगा। हमारी एसआईपीज जो चल रही है उसको वो बंद नहीं करेगा, या बंद करेगा तो उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि उसके 2,500 जाने बंद हो रहे हैं, उसको ये दिखना चाहिए कि उसको 15 लाख अब नहीं मिलेंगे या उसका कम मिलेगा। इफ यू थिंक दोस्तों इफ दिस वर्क्स, आप एक बार मुझे रिएक्शन में थम्स अप डालिए, लेट मी अंडरस्टैंड कि आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको वैसे ही समझ पा रहे हो। So these are some communications which are being sent to the customer, कि उन लोगों को कम्युनिकेशन जाएगी, ऑटोमेटेड जाएगा। ये सब हम सब जानते हैं दोस्तों।
आप भी जानते हो रोज सुबह उठ करके हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट हमेशा शायद ही कोई इसे रोज डिलीजेंटली फॉलो कर पाता है। बट अगर मैंने उसको ऑटोमेट कर दिया, अगर मैंने उसको सीआरएम में डाल दिया, तो मुझे करना ही नहीं है, वो पूरा काम जो करना चाहिए था वो सीआरएम खुद ही कर लेगा। तो मेरा जो काम है वो मेरा सीआरएम कर रहा है। तो मेरा जो काम बचेगा इज जस्ट टू टॉक टू द कस्टमर एंड इंश्योर कि मैंने जितना ऑटोमेशन लगाया है वो काम बराबर से हो रहा है।